Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So here I've come up with another video. In this video, I'm going to discuss upon the topic of here I'm going to discuss on the topic of instance variable in Python. So we have like worked on the proofs concept as well. So yeah, but I have not like completely explained you on the topic of instance variables. So here in this video, I'm going to discuss on the topic of instance variable only, like how they are created. Can they be can they be used outside the class? Can they be used inside another method? Can instance variable be defined only inside the constructor method only, or they can be defined in another method also? So, like it's like these question I want to answer. So let me just start with that. First, let this Anaconda Navigator open completely. Then I'll go to the Jupyter Notebook launch. So here, first I'll create a simple class here. And after that, I will go to the topic of instance variable completely. Okay, so let me define a simple class here. I will define a class like class maths operations. Simple class like we define DEF. I'll write my constructor here also. Got it. Cell. And then rent. This is the maths operation class. Got it. So I'm defining a simple class here. Got it. This is the maths operations class. And then now we will define addition number function as cell a is equals to integer of the input, enter number one, b is equals to integer of the input, enter number two, got it. Now we will write here c is equals to a plus b, and then here I'll write print c. Now we will define my subtraction number function here also. Subtraction number function here also as this. I'll not explain this how I have written this class because I have explained the topic of class in previous video in the brief. You can go to my Python interview question playlist and you can check out those videos. I have made I think three videos on Oops concept one, two, and three. So there you can check that. Enter number one. And then enter number two. Let me just copy this from here. Okay, copy it. Got it. So instead of plus, I will write minus, and then I'll write maths of function also, all of function also, all of function also, Excel, and then here I will write call self dot addition number and subtraction self dot subtraction number.
Got it. So here print, print. This is all of SmackDay. Okay, I'll execute this. I will create an object out of this class and equals to max operations. So if I'll call this only, then only the construction function will get called. So this is max operation class. Now I have to explain you the topic of instance variable, right? So what is an instance variable? First thing is an instance variable start is created by using self. For example, if I'll write self dot c is equals to 5, then this is an instance variable. If I'll write self dot c is equals to c, then it is also an instance variable. If I will write self dot underscore c equals to 5, then it is also an instance variable. If I'll write self dot double underscore c equals to 5, then it is also an instance variable. If I'll write self dot underscore c equals to c, then it is also an instance variable. If I'll write self dot underscore c is equals to c, then it is also an instance variable. So all these are instance variable. गॉट इट. सो जो भी वेरिएबल सेल्फ से क्रिएट होते हैं वो सब इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, और जो हमारे पब्लिक, ये हमारा आपको पता होगा, ये हमारा प्रोटेक्टेड वेरिएबल है, और ये हमारा प्राइवेट वेरिएबल है. तो प्रोटेक्टेड प्राइवेट वेरिएबल जो होते हैं ये भी हमारे बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल ही होते हैं. ठीक है. इंस्टेंस वेरिएबल बेसिकली इसलिए बने थे क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल एक ऐसे वेरिएबल्स है जिनको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल आउट कर सकते हैं. बाकी हम कोई भी चाहे हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिख दें या यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दे से, तो भी हम उसे ऑब्जेक्ट के थ्रू कभी कॉल आउट नहीं कर सकते, बस इंस्टेंस वेरिएबल को कर सकते हैं. पर इंस्टेंस वेरिएबल को भी तभी कर सकते हैं या तो वो कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन हो, यानी कि इस वाले मेथड के अंदर डिफाइन हो, और इसके अंदर अगर डिफाइन होगा तो हम तभी कॉल कर पाएंगे जब हम पहले इस मेथड को कॉल करेंगे. तो डायरेक्टली हम किसी भी वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के थ्रू तभी कॉल कर सकते हैं जब वो कंस्ट्रक्टर में प्रेजेंट हो. So basically, it's better to write an instance variable inside a constructor. Let me explain you this. For example, if I'll write self dot, let me just copy this. Got it? Let's go to the another cell. If I'll write self dot c is equals to 10 here. Got it? Then I can call this variable or not. I can call this because it's an instance variable which is defined inside a constructor. तो इसीलिए मैं इसे डायरेक्टली कॉल कर पाऊंगी. So m dot c अगर लिखूंगी ना तो 10 ही आएगा. अब एक और चीज देखो, अगर हमने यहाँ पे सेल डॉट सी को सी कर दिया और यहाँ पे हमने सी लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये मेथड डिफाइन कर दिया, मैथ्स ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल 14, तो तब भी मैं इसको एम डॉट सी को कॉल कर पाऊंगी, ये 14 आ जाएगा. ठीक है. तो मतलब मैं ऐसे भी कॉल कर पाई और ऐसे भी कॉल कर पाई. अब मुझे ये देखना है कि इसको मैं अलग मेथड में कॉल कर सकती हूँ. हाँ, ये भी कर सकती हूँ. जैसे कि यहाँ पे ये किया मैंने, जैसे था सेल डॉट सी इज इक्वल्स टू 10 था. ठीक है. तो अब हम इसको अलग मेथड में भी यूज कर सकते हैं. मतलब हमने अगर इंस्टेंस वेरिएबल, एक और पॉइंट है, अगर हमने इंस्टेंस वेरिएबल सेल डॉट से डिफाइन करते हुए भी बताया ना, अगर हमें इंस्टेंस वेरिएबल को क्लास में कहीं यूज करना है ना, तो भी हम सेल्फ डॉट से ही यूज कर पाएंगे. किससे यूज कर पाएंगे? पहले तो अभी हम देखें कि जो हमने इंस्टेंस वेरिएबल को हम केस 1 कर रहे हैं, जब हमने इंस्टेंस वेरिएबल को डिफाइन किया कंस्ट्रक्टर के अंदर. ठीक है. और इंस्टेंस वेरिएबल को हम कहीं पे भी क्लास के अंदर यूज करना चाहेंगे तो सेल डॉट से यूज कर पाएंगे. क्लास के बाहर तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं c इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सेल्फ डॉट सी लिखूंगी, लेकिन इसको थोड़ा चेंज कर देती हूँ, इसको सेल डॉट डी कर देती हूँ. और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली डी लिखूंगी ना, तो ये मेरा गलत हो जाएगा. लाइक ये क्लास तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगी ऑब्वियसली, बट
ये जो है मेरा गलत हो जाएगा। अगर मैं एम डॉट एडिशन नंबर फंक्शन को कॉल करूंगी ना, तो ये कहेगा कि ये मैं डी को जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि डी जो है वो मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है ना। 4 5, उसके बाद एरर दे दिया, ठीक है, और एरर किस लिए आया, डी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब अगर मैं इधर लिख दूंगी सेल्फ डॉट डी, तो वो मैं यूज कर पाऊंगी। ठीक है, एम इक्वल्स टू मैथ्स ऑपरेशंस। Instance variable basically they can be defined outside the constructor method and into another method, but it's a better practice because otherwise अगर मेरे को उस इंस्टेंस वेरिएबल को कहीं यूज करना पड़ा, तो भी मेरे को जिस मेथड में वो डिफाइन है उससे यूज करना, उससे पहले कॉल आउट करना पड़ेगा, तभी मैं यूज कर पाऊंगी उसको। और अगर मेरे को मतलब क्लास के अंदर भी अगर मेरे को उसको दोबारा यूज करना पड़ा, तो मुझे जहां उस जिस मेथड में डिफाइन किया गया है ना इंस्टेंस वेरिएबल, उस मेथड को फिर से कॉल करना पड़ेगा। और अगर मेरे को क्लास के बाहर यूज करना है, तब भी मेरे को उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा पहले, अगर जिसमें वो इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया गया है, तभी वो कॉल हो पाएगा। मतलब दोनों केसेस में मुझे उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा जिस मेथड को क्रिएट किया गया है। अब कंस्ट्रक्टर का क्या, कंस्ट्रक्टर मेथड अपने आप कॉल आउट हो जाता है जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसीलिए उसमें डिफाइन करना ईजी है। फॉर एग्जाम्पल एम इक्वल्स टू मैथ्स ऑपरेशन, अब मैं अगर एम डॉट एडिशन नंबर करूंगी तो सब सही रहेगा। लाइक, गॉट इट। अभी तो हमने देख लिया कि जब मैंने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है इंस्टेंस वेरिएबल को कंस्ट्रक्टर के अंदर, अब अगर मैं इस इंस्टेंस वेरिएबल को डिफाइन कर रही हूँ किसी फंक्शन के अंदर, यहाँ पे, या जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, अगर मैं डी सेल डॉट डी इज इक्वल्स टू, तो ये गलत नहीं है, ये भी एक इंस्टेंस वेरिएबल ही है, ठीक है ना। बट मैं इस इंस्टेंस वेरिएबल को बाहर डायरेक्टली कॉल आउट नहीं करना कर पाऊंगी, मेरे को पहले एडिशन नंबर का कॉल करना पड़ेगा मैथड को, मैथ्स ऑपरेशंस। ठीक है, अब अगर मैं डायरेक्टली बोलूंगी, मैं जैसे वैसे तो मैं कर पा रही थी ना इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल आउट, पर अब यहाँ एट्रीब्यूट एरर दे दिया, यहाँ पे मैं तब कर पाऊंगी जब मैंने एडिशन नंबर फंक्शन को पहले कॉल आउट किया। ठीक है, अब मैं कर पाऊंगी एम डॉट डी कॉल, बट डायरेक्टली देखोगे अब मैं कर पा रही, बट तब मैं नहीं कर पा रही। ठीक है, तो यही फर्क है। और एक और चीज दिखाने की, मैं इस वाले इंस्टेंस वेरिएबल को और कहीं डायरेक्टली यूज भी नहीं कर पा रही जब तक मैं कॉल नहीं करूंगी, जब तक कि हमने फिर से ये डिफाइन किया क्लास। ठीक है, और उसके बाद अगर मैंने इसको यहाँ यूज करना चाहा है, माइनस कुछ भी, सेल्फ डॉट डी, सेल्फ डॉट डी प्लस ए माइनस बी करना चाहा है मैंने, ठीक है, तो भी ये गलत हो जाएगा। एम इक्वल्स टू मैथ्स ऑपरेशन, मतलब ये उसको उठाएगा नहीं जब तक मैं, मतलब मैं देखो दिखाती हूँ मैं एक बार करके, जैसे कि एम इक्वल्स टू मैथ्स ऑपरेशन को कॉल किया, उसके बाद अगर मैं एम डॉट सब्ट्रैक्शन नंबर को कॉल करूंगी ना, तो ये अपने आप डी की वैल्यू नहीं ले लेगा, ये एरर दिखा देगा, ये सेल डॉट डी को पहचानेगा ही नहीं। ठीक है, पर एक तरीका है कि ये पहचानने का, जिस जब अगर मैं एडिशन नंबर फंक्शन को पहले कॉल करूं और उसके बाद मैं सब्ट्रैक्शन नंबर फंक्शन को कॉल करूं, ठीक है, एम डॉट एडिशन नंबर फंक्शन को पहले कॉल करूं, उसके बाद अब मैं अगर करूंगी ना, देखना तो पहचान देगा एम डॉट सब्ट्रैक्शन नंबर, पर फायदा नहीं है ना, मतलब इसीलिए इंस्टेंस वेरिएबल को वहां डिफाइन करो तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब पहचान लिया, समझ गए मतलब इंस्टेंस वेरिएबल का रोल। इंस्टेंस वेरिएबल सेल्फ डॉट से ही डिफाइन होता है, और इंस्टेंस वेरिएबल को अगर हम कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करें तो ही बेटर है, बिकॉज तभी वो
हर एक क्लास के मेथड में भी यूज हो सकता है और बाहर भी इजीली यूज हो सकता है, पर हर एक क्लास के मेथड में उसको सेल्फ डॉट से ही कॉल करना है। बाहर हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अगर हमने किसी और मेथड में गलती से इंस्टेंस वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, तो ऐसा नहीं कि वो इंस्टेंस वेरिएबल नहीं रहेगा, वो रहेगा इंस्टेंस वेरिएबल तब भी। बट हाँ, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि हम उसको डायरेक्टली ना ही किसी और मेथड के अंदर कॉल कर पाएंगे, ना ही उसको डायरेक्टली हम क्लास के बाहर कॉल कर पाएंगे। अगर हम उस इस केस में अगर हम डायरेक्टली किसी और मेथड में कॉल करने का मन है, तो पहले हमें उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा जिसमें वो इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन है, उसके बाद ही कॉल करते हैं। और बाहर भी सेम चीज होगा, पहले हमें उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा जिसमें उसे क्रिएट किया गया है, तभी हम उसको बाहर भी कॉल कर पाएंगे। So that is all for today, guys. Now we will meet in another session with another video. Until then, goodbye. This was important topic. That's why I have discussed that today as well. So that's all. Thanks. Thanks everyone.